Hello guys, so back with one more review. This is going to be a shoe review for the Onitsuka Tiger Mexico 66 red and blue ribbon edition. This is my fourth shoe review this month. This is a new shoe again I've bought. I think this I've bought 4-5 days ago. I've been wearing for 3 days. I'll take you through how it looks, the design, the quality of the product, in the sense the leather, etc., and the price of it and where I bought it from. So yeah, just a few things about the Onitsuka Tiger before I show the product for the shoe. Onitsuka Tiger was is from the family of Asics or Asics as they call it. This brand is Asics is known for, or Asics is known for running and walking majorly. It was used by athletes during football and baseball in Japan as well as in the US in the early 60s right up till 90s, and then running sort of took over. So the running line is also called as Asics only. So Asics, from the Asics version, they got a Onitsuka as a design division where they released the Tiger versions. They're called as Tigers because they basically, the approach of the shoe is made less of running and more of casual shoes, or more about indoor athletic shoes, which these shoes are basically very helpful on those sanding resin based floors that are there on any indoor table tennis scenes, or any of those kind of things where you have to play any indoor game which is more athletic in nature. They are flat footed. And so Onitsuka Tiger was the whole thing. Onitsuka Tiger actually started coming up in 2010s, and right in the last 15 years it has been the best selling shoe for Asics. Onitsuka Tiger is expensive also, and especially in India it's very expensive. Generally shoes go from 5,000 rupees to 15,000 rupees. The shoes also took popularity in the last 3 years in India, considered to be a premium shoe. Also, a huge push was from Akshay Kumar. Akshay Kumar is an Indian actor. उन्होंने actually बहुत push किया उसके लिए. Push in the sense he wore it, so it was a basic public relations, publicity हो गया उसकी वजह से. And due to that reason, it's been very popular in the last 3 years. Especially in the last 2 years, Onitsuka is the leading cash cow for Asics in India and now in Asia also. So because of India's popularity in India of people buying the Onitsuka Tiger, Asics has termed it the best selling shoe for India it is, and now for Asia as well. So I'll just go to the shoe now. Yes, this is the Onitsuka Tiger Mexico 66 shoe. I wore for only a couple of days. This is the back tag or the back tail that is there. It has a tiger emblem on it. The inner sole is a soft sole. It's not very soft. It's more of a daily casual wear kind of feel. So it's not meant for running. It's meant for normal walking. So it's very, it's okay. It's not very soft also. It's okay. It's tough. So basically all the entire bottom and the whole part of it is all not vulcanized rubber, but rubber and leather combination. So this is a suede leather that they have over here. This is all suede leather, and everything else is pure leather. Everything else is triple stitched pure leather. All of these are all pure leathers. Again, this is suede leather that's been put over here. A couple of things on this, on the build quality of this, is that the suede leather in Indian conditions, especially now that the monsoons are coming in, मानसून में या फिर रेनी सीजन में क्या होता है कि इस पर कोई भी गंदगी अगर कुछ होता है, चिक्कल विक्कल अगर इसमें उड़ता है, तो ये निकलने के लिए बहुत मुश्किल है. तो इसको बहुत केयर से यूज़ करना पड़ता है. तो ये जब भी पहनो जब आप कि आप ऐसे जगह पे जाने वाले नहीं हो जहाँ पे बहुत गंदगी हो या फिर डस्ट हो. नॉर्मल डर्ट भी अगर हो तो निकलता नहीं है इतनी ईजी. और स्वेट लेदर पे प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ भी यूज़ करो, ब्रश यूज़ करो, कपड़ा यूज़ करो, लेदर पे चलेगा लेकिन स्वेड पे नहीं. स्वेड का ये धागा निकलता है. ये लेदर जो बनता है, और लेदर के ऊपर दे इंग्रेन द लेदर इटसेल्फ इज इंग्रेन विद हेयर. जो भी एनिमल का हेयर है, लेदर इज ऑब्वियसली एनिमल लेदर ही होता है. जो भी होता है दैट इज इंग्रेन, वो उसमें पहले से ही डिफ़ॉल्ट
हेयर का वो स्किन है. नॉर्मल लेदर क्या होता है, वो मिक्स ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर नॉर्मल सिर्फ चमड़ी आता है. सो दैट इज द थिंग अबाउट दिस. इट्स वेरी गुड फर्म क्वालिटी. All the base of this, the entire base of this has a tougher, so this all is soft, right? This part, and then this part has a inner reinforcement. जिससे इसका you could say अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ लगा पीछे से, अगर कोई टेबल लगा चल रहे और चेयर और टेबल पीछे से लग गया या फिर आगे से लग गया, तो ये सब टफ, देखो ये सोल इसका आगे ऊपर तक आ रहा है, तो वैसा वो टफनेस के लिए वो अच्छा है. इट्स मेंट फॉर लिटिल मोर एथलेटिक नॉर्मल कैजुअल डे. ऐसा अगर फॉर एग्जांपल कुछ चल रहा है और बीच में लगा किसने बोला कि फुटबॉल खेल लेते हैं या फिर क्रिकेट खेल लेते हैं, इंडोर बाहर क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज गंदगी भी होता है और ये जनरली इंडोर के लिए बना है. और तो बेसिकली किसने बोला, तो ये वी कैन यूज दिस ऑल्सो एज दिस. जनरली इसको प्लीज मतलब अवॉइड करना चाहिए इन मानसून एंड रेनी सीजन. एक और चीज़ है, अगर मानसून में यूज कर रहे हो, इसका जो ग्रिप है इट इज इंसेनली ग्रिप्ड. इसका हर एक एज, इवन द कॉर्नर एजेस आर ऑल इंसेनली ग्रिप्ड. इसका जो खिच आवाज आता है व्हेन यू वॉक, राइट, न्यू शूज वॉक होता है, तो इसका जो आवाज आता है एक अलग ही इसका अलग ही आवाज आता है इसका. सो द ओवरऑल प्लेसमेंट ऑफ द रिजेस दैट आर देयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल शूज. दे आर नॉट स्टाइल्ड इट. एडिडास का स्टाइल होता है, नाइकी का स्टाइल होता है, ऐसा अलग से कुछ नहीं है. दिस इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर अ ग्रिप. ओरिजिनली दिस वॉज बेसिकली अ जूडो और कराटे शू. मतलब ASICS didn't say कि we are making this for that, for any kind of martial arts, but people who basically who do athletics or who do any kind of martial arts, they prefer this because obviously रियल लाइफ में कभी ऐसा यूज़ करना नहीं पड़ता है कराटे और फिर किकिंग वगैरह कुछ भी किसी हालत में. जनरली लोगों का इतना बड़ा बसट नहीं होता है, पर भाई हो गया तो इट वॉज कंसिडर्ड कि एशियन कंट्रीज में दिस वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज ये फ्लैट है, ग्रिप सॉलिड है और भाग सकते हैं और वो टाइट रहता है एकदम. सो ये अभी लेस के साथ है. सो दिस लेस ऑन दिस इज बेसिकली दीज आर लेस वंस एंड दे ऑल्सो कम विद स्लिप ऑन. सो विदाउट लेस भी आता है जहाँ पे डायरेक्टली बस यू कैन ऑल्सो राइट नाउ ऑल्सो कैन जस्ट रिमूव द लेस एंड वेयर इट विदाउट द लेसेस ऑल्सो. बट जनरली अगर ये लेस्ड है कोई भी प्रोडक्ट ओनित्सुका का, इट इज़ वेरी टाइट ऑन द, व्हेन आई से टाइट मतलब इट इज़ वेरी फिटिंग इसका बहुत अच्छा है. सो ऐसा लगता है कि एज इफ यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रेसिंग शूज, या फिर एकदम सा जो शूज है विच आर मेड फॉर यू टू वॉक और रन और टू बेसिकली डू योर नॉर्मल थिंग्स विदाउट एनी इशूज़. नए शूज़ होते हैं नाइकी के, एडिडास के, बड़े चंकी वाले, बड़े सोल्स वाले. उसमें क्या होता है, गेट सम टाइम टू गेट यूज टू इट. इसमें वैसा नहीं है, इसमें इट फिट्स टू योर. और हाँ, इसके अंदर जो है इट्स ऑल, ये जो लेदर है इसके अंदर कोई परफरिंग नहीं है. परफरिंग मतलब क्या होता है, देयर इज नो सेकंड लेयरिंग ऑफ दिस, इट इज डायरेक्ट लेदर लेयरिंग. सो व्हाट हैपेंस इज इट मोल्ड्स टू योर फीट. लकीली मेरे फीट वाइड है. इन द प्रीवियस वीडियोज यू मस्ट हैव सीन माय फीट आर वेरी वाइड. लकीली ये बराबर फिट होता है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर मेरा फीट वाइड है तो वो बराबर फीट के हिसाब से जाता है. और मैंने 3 दिन पहना है मैंने, तो 3 दिन कुछ इशू नहीं आया. बस एक मेरे को एक ये है कि मेरे को खुद को यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, शू बाइट हुआ था पीछे. इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ लग तो नहीं रहा है. तो आई थिंक वो बस नया शू है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, थोड़ा मतलब आई थिंक 7 डेज लगेगा उसको फिट होने के लिए बॉडी को. बस थोड़ा इसमें लगा मेरे को लगा थोड़ा कटिंग कर लूँ, बट मतलब यार इतना महंगा भी शू है, कटिंग नहीं करना चाहिए. अच्छा लेदर है एंड इट्स ओनित्सुका ओरिजिनल्स. ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई फाउंड वेरी नाइस, बिकॉज मेरा क्या होता है ना, मैंने वेयर सॉक्स पहनने के बाद मेरे सोल पे, मेरे फुट के सोल पे स्वेटिंग होता है. आई डोंट नो क्यों, जनरली ऊपर से होता है बट मेरे फुट पे होता है. यहाँ पे इन्होंने इस पे जो अपना ये इंटरनल जो क्या बोलते हैं सोल है, सोल का सॉफ्ट सोल है, इस पे इनका ब्रीदेबल मटेरियल दिया है. आई गेस इट इज सम वे ऑफ कुशनिंग इट, मतलब मेक्स इट ब्रीदेबल. आई एम गेसिंग उनका वो रीजनिंग रहेगा. बट जनरली देखो इसका ऐसा है, इफ यू कैन सी इट, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट थोड़ा, बट इनका ऐसा ये पूरा अंदर का शू का ये है मटेरियल. व्हेन आई से ट्रिपल स्टिचिंग, व्हाट आई मीन इज, ये जो उन लोग का जनरली सब प्रीमियम शूज़ में और हाई एंड शूज़ में ऐसा होता है कि अगर ट्रिपल स्टिचिंग है, इट गोज टिल इंटरनल, इट गोज थ्रू द लेदर. आपको मालूम है कि अगर लेदर के थ्रू अगर जा रहा है, देखो ठीक है, अगर लेदर के थ्रू जा रहा है मतलब कितना तगड़ा वाला स्टिचिंग, और नाइलॉन का क्वालिटी क्या रहेगा, जो नाइलॉन थ्रेड्स रहता है. सो
that knowing that कि that this is the quality of the stitching of this, I am very sure कि ये बहुत साल टिकने वाला है. And I had a friend of mine जिसने I think ये almost 5-6 साल यूज़ किया था. उसने I think सिंगापुर से लिया था शूज़, स्लिप ऑन्स लिया था, एंड आई थिंक स्टिल ही इज़ वेयरिंग इट. थोड़ा उसका स्कफ मार्क्स और लेदर का थोड़ा टेयर हुआ है, बट कम ऑन, अभी इंडिया में रहने के बाद ये होता ही है. बट ये वो है. वन मोर थिंग, दिस टंग पे ये है, मतलब आई एम गेसिंग दिस इज स्पंज ऑफ सम काइंड. डजंट लुक लाइक थर्मोकॉल, मतलब थर्मोकॉल तो रहेगा नहीं, बट स्पॉन्ज ही रह सकता है ये, आई थिंक सो. विच काइंड ऑफ मेक्स इट कंफर्टेबल, बट जनरली आई प्रेफर वेयरिंग माई शूज़ कि अगर फॉर ऐसे है और मैं अंदर डाल दिया पैर तो मेरे में टंग बाहर लेता हूँ. सो इट इज़ लाइक यू नो, दो चीज़ें इसमें से. एक तो इट मेक्स इट मोर ब्रीदेबल, हवा जाती है अंदर, प्लस ये ब्रांड दिखता है. और मैंने ये शूज़ लिया था 2 रीज़न के लिए. एक तो मेरे को अक्षय कुमार के वो जो शूज़ पहनते हैं वो पसंद है, तो मेरे को एक बार ट्राई करने का था. 3 reasons actually, and second reason is my friend told me to wear this. Plus जो ओनित्सुका का पूरा टाइगर का ब्रांडिंग है इसके ऊपर, इट्स वेरी लीनियर. ऐसा कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी लीनियर है, वेरी वेल टू नो वेल मेड शूज़ है. सो या आई डोंट फील एनीथिंग. ग्रिप अगेन एज आई सेड, सुपर ग्रिप है, मतलब आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज दैट ग्रिपी. इतना पकड़ के रहता है. सो या दिस इज द होल shoe. So the comfort level is okay. It's not very bad. मेरे को इधर थोड़ा हुआ था, थोड़ा लग रहा था, तो मेरे को लग रहा है कि उसमें थोड़ा हो जाएगा. बट दैट्स इट. इट्स नाइस कंफर्ट टू इट. फील्स वेरी टाइट एंड फील्स वेरी सिक्योर ऑन योर फुट. क्वालिटी वाइज सुपर क्वालिटी. तो ट्रिपल लेयरिंग अंदर तक उसका स्टिचिंग दिख रहा है. लेदर अच्छा है, स्वेड लेदर है, तो क्वालिटी अच्छा ही है. एंड और इसमें क्या, तो the pricing for this is so it varies. तो मैंने मिंत्रा पे मैंने देखा था, आई थिंक 8,500 के लिए था. 8,500 का मेरे को क्रेड से थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा कम हो गया था. क्रेडिट पॉइंट्स मिला था, आई थिंक उस पर 10% डिस्काउंट था, ये वो करके वो आई थिंक 7,500 तक मेरे को मिला था. जनरली मेक्सिको 66 ये वाले जो है, इसमें ग्रीन और येलो आते हैं. दैट इज़ तो इवन मोर सुपर. वो लेकिन वो आते हैं 12,000 के लिए. ये भी 10,000 के लिए थे. लेकिन आई डोंट नो व्हाट, एक टेक्निक है एक्चुअली, मे बी दैट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो, नहीं, मे बी दैट इज़ द रीज़न. व्हेन यू गो टू एन ऐप, मिंत्रा, अमेजॉन, दिस राइट, दे कांट ट्रैक ईच अदर. वो अलाउड नहीं है फ़ोन पे. अगर वेबसाइट के ब्राउज़र पे आप तीनों ओपन करके रखो, देयर इज़ अ एल्गोरिथम विच अमेजॉन स्टार्टेड, जहाँ से दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. दे अंडरस्टैंड कि भाई बाकी वेबसाइट्स पे इस टाइम पे ये रेट है, दे ट्राई टू मैच इट और लोअर इट. दिस इज अमेजॉन्स इकोनॉमी ऑफ स्केल, बिकॉज उतना उनके पास साइज है. दिस इज ऑल्सो बी अडॉप्टेड बाय मिंत्रा एंड बाकी सब जो कॉम्पिटिटर्स है, फ्लिपकार्ट जो भी है, अजियो वगैरह, तो उन लोग सब करते हैं. दैट इज थिंग, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेरे को नोटिफिकेशन आया कि ओनित्सुका योर लेटेस्ट, क्या, योर मोस्ट वॉच्ड शूज हैव अ ड्रॉप ऑफ, कुछ तो ड्रॉप आया, उनमें प्राइस पे ड्रॉप है. तो आई लाइक सुपर. और मैं क्लिक किया और मेरा जो शू देखा था वही उन्होंने 8,500 में मिला. 10,000 का 8,500 में मिला. ये ब्लू और रेड वाले, जो ग्रीन और येलो थे फिर भी 12,000 ही थे. दैट इज़ वाई, बिकॉज वो बहुत ही रेयर है. आई टेल यू वाई ऑल्सो रेयर. जहाँ पे मैं काम करता हूँ मेरे को लगा अभी ये इतना 10, ऑलमोस्ट 8, 8.5, 10 का ले रहा हूँ, तो यार कम लोग रहेंगे. मैं फर्स्ट सेकेंड डे पे पहना मैंने शूज़. मेरे सामने 3 लोग ने, अलग अलग लोगों ने पहन, मतलब नीचे गया था कैंटीन में, 3 लोग अलग अलग लोगों ने पहना था. मतलब सुपर. ये वो भी रेयर नहीं है. तो इट्स नॉट वेरी रेयर नाउ, एवरीवन नोज दिस इज. बट या मेरे को एक बार चाहिए था, आई वांट टू सी हाउ इट इज़, हाउ द फील इज़. बेसिकली मैं पहन के दिखाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज कुछ है नहीं. नॉर्मल शू है, देखो नॉर्मल शू है. एक मैं बोल सकता हूँ, अगर इसको देखोगे तो ये मेरे हाथ के हिसाब से देखो, थोड़ा ये ना लाइक नॉर्मल नाइकीज और प्यूमास के सब ठीक वाले शोल थे, वो इतना समझो कि वो उस पर सोल नहीं है. इतना तक सोल जो आता है ना बड़ा वाला, प्यूमा नाइकीज में बड़े वाले सोल, वो नहीं है. इस पर फ्लैट सोल है. इससे क्या होता है, यू गेट मोर, योर फीट आर मोर टू द ग्राउंड, यू आर मोर बैलेंस्ड, यू कुड से. कंफर्ट उससे वजह से थोड़ा कम हो सकता है, मतलब सोच सकते हो ऐसा कि कंफर्ट हो सकता है. बट या ओवरऑल मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं आया. बस वो थोड़ा फुट का पीछे का जस्ट साइड थोड़ा लग रहा था वो. बट आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज वेरी एट पार विथ व्हाट आई वांटेड फ्रॉम अ शू. एंड या कॉम्प्लीमेंट्स तो आए बहुत सारे. आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल हु आई डिडंट नो ऑल्सो. सो आई वाज लाइक या कूल. वो भी चल सकता है. दिस इज अ सेकंड पेयर, मतलब सेकंड सेंस
उसका पैर है. Just wanted to show you कि ये भी ऐसा है. Nothing else as such, same ही है. Yeah, as I said, मेरे को मिंत्रा पे मिला था ये 7,500 में. It was 8,500 for me. I took it from the browser. अभी जनरली लोग करते नहीं है बिकॉज ऐप ईजियर है. खुद मिंत्रा और अमेजोन भी और एनीवन एल्स, मतलब जो भी कंपनीज है वो खुद के ऐप्स को पुश करते हैं. ऐप्स को मेंटेन और हाइजीन रखना बहुत ईजी होता है. इट इज़ मच मोर यूज़र एक्सपीरियंस उसका काफ़ी अच्छा होता है यूज़र का. बट अगर ये मेरे को मिल रहा है, इफ़ आई एम सीइंग दिस हैपनिंग ऑन ब्राउज़र, व्हाई नॉट. और प्लस मेरे पास वो क्रेडिट का ये भी है, तो उससे भी थोड़ा आई थिंक 10-20% कुछ तो कम हुआ था. एंड या अगर कुछ एक्सपेंसिव लेना हो तो ऐसा ट्राई करो करने के लिए, बिकॉज जनरली क्या होता है एक्सपेंसिव चीज़ों पे डिस्काउंट भी हैवी होते हैं. एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर गए तो डिस्काउंट लागू होता है. प्लस ये ब्राउज़र वाला सीन भी एक चीज़ है, और लकीली हो गया. मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से ट्राई करा था ये ब्राउज़र वाला डिस्काउंट्स या फिर ब्राउज़र वाले कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम होने के लिए ट्राई करना था, और लकीली इस टाइम हो गया तो मैंने वो बाय कर लिया. दिस इज़ व्हाट द cost का scenario, pricing scenario is, and where I bought it from. I'll try to put the link from Myntra Ajio over here. I don't have any affiliates, ऐसा कुछ मेरा कुछ affiliate marketing ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको जिधर से भी लेना है ले लो. आपको अगर किधर Amazon पे कम मिल रहा है वहाँ से भी ले लो, I have no issues. मैं डाल देता हूँ so that you know कि ये कौन सा है. Basically I'll put in a title also, but इसको बोलते हैं Onitsuka Tiger Mexico 66. सिंपल. उसमें आते हैं 3 कलर्स, 3 अलग अलग कलर आते हैं. वाइट में 3 अलग अलग कलर आते हैं. वाइट ऑन ग्रीन येलो, वाइट ऑन रेड ब्लू, और एक आता है ब्लैक एंड वाइट करके आता है. देयर आर अदर कलर वेज ऑल्सो ऑन दिस. सो वाइट छोड़ के भी एक येलो करके आता है. फिर येलो में भी सेम वही रेड ब्लू और ग्रीन येलो ऐसा करके अलग अलग है. तो देयर आर मल्टीपल वेरिएशन. जनरली लोग येलो या फिर वाइट लेते हैं. आई हैव टेकन वाइट बिकॉज मेरे को ये चाहिए था. सो आई टुक दिस फॉर माई सेल्फ. So yeah, I think this is it. This is the review. Any other questions? Any other questions you want to ask? कि कोई कुछ कमेंट करना है कि अभी चलो 1 महीने के बाद इसको कमेंट करना है, फिर 1-2 महीने हो गए हैं, तो उसमें को पूछ सकते हो. अभी जस्ट 5 दिन हुए. You can ask me any questions that you want. You can keep commenting. I can keep answering as the days pass. तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 हफ्ते के बाद कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह. But yeah, very nice quality. And yeah, there's no issue with this. So like and subscribe for more reviews in the future.